Namaskar to all my dear aspirants for CUET 2022. I am Shikha, your mentor to help you in the completion of syllabus for the subject English. We have completed near about almost all in verbal ability. Now I am just moving on towards vocabulary. In that part, we have already taken one word substitution. In this video, I will cover antonyms and synonyms. Here in this video, I am not telling about the list of antonym and synonyms word by word. That I'll just provide you in the form of the list. You can go through that. Here I am telling you the tricks, okay, and the way to reach to the right word, right? So it can also be fall in the category of finding or choosing the correct word, okay? This is one of the clearly written parts in your syllabus, choosing the right word. So synonym, antonym, one word substitution, these all falls in this category only, right? So here, techniques for solving synonym and antonym questions, some of the techniques I'll share it with you, and then we will move on towards the antonym and synonym. So number one is one harder synonym antonym questions. Beware of trick choices. Can you spot the trick in the following example? Means when the writer or the examiner is giving you the question, he is providing you with some of the tricks or ways or method. Now it is up to you that are you aware about, are you able enough to find them or catch them to get to the answer or not. ठीक है, तो उन ट्रिक्स के जरिए हमको पहचानना होता है, वो ट्रिक्स आपको आंसर तक पहुंचने में मदद करेंगी. अब वो ट्रिक्स जानने के लिए भी आपको वोकैबुलरी का इंफॉर्मेशन, उसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. वो एक दिन में नहीं होती है, वो आप जब तक आपका अभी एग्जाम होता है तो जस्ट फॉलो द एडवाइस दैट जस्ट गो थ्रू द वोकैबुलरी, ओके. रोज़ नए नए वर्ड याद करो, उन वर्ड को स्प्लिट करो, उनका मीनिंग जानने की कोशिश करो. ट्राई टू नो देयर सिनोनिम एंड एंटोनिम, उसके सिमिलर और डिफर वर्ड याद करने की कोशिश करो जब तक आपका एग्जाम होगा. इफ़ यू विल जस्ट मेक द टारगेट कि मुझे रोज 5 वर्ड नए वर्ड याद करने हैं, तो it will be okay. Enough word you will have the collection till that, but बीच बीच में रिवीजन करना जरूरी है. ठीक है, चलो अभी चलते हैं. यहाँ पे चूज द बेस्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड रेस्टिव. ठीक है, अभी हम ट्रिक्स के थ्रू देखते हैं कि रेस्टिव वर्ड का हमको क्या चुनना है, एंटोनिम इसका डिफरेंट वर्ड चुनना है. Now so many words are given here: patient, rigorous, deceptive, active and cautious. अब कौन सा एंटोनिम है हमको नहीं पता. You can be there or you can find 4 MCQ और 5 MCQ आपको मिल सकते हैं, 4-5 मिल जाते हैं. जितने ज़्यादा होंगे उतनी ही ज़्यादा आपके लिए परेशानी या कन्फ्यूजन होगा. The word restive is tricky. अगर हम देखें तो restive word थोड़ा सा tricky है, because it sounds like it has something to do with rest. कोई भी होगा, 90% people will say that restive is related with rest, but therefore एक्टिव वुड बी द बेस्ट एंटोनिम. अगर हम देखें एक्टिव, अगर रेस्ट आप समझ रहे हो तो इसके अकॉर्डिंग तो एक्टिव होना चाहिए इसका बेस्ट एंटोनिम. हाउएवर दिस इज अ ट्रिक, ये एक ट्रिक है, बिकॉज रेस्टिव एक्चुअली मीन्स रेस्टलेस. ठीक है, बिल्कुल अपोजिट हो गया, एकदम अपोजिट वर्ड है. मतलब रेस्टिव रेस्ट का ही अपोजिट है. अगर हम देखें तो इसका मतलब होता है रेस्टलेस. सो द करेक्ट आंसर इज पेशेंट. ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, नंबर 1, दैट इज पेशेंट. अ गुड एंटोनिम फॉर रेस्टलेस. It is beneficial to familiarize yourself with the tricky words like restive. कैसे familiarize करोगे, ये एक दिन का काम नहीं है. मैं अगेन कह रही हूँ आपको, आप कितना भी रूल्स एंड रेगुलेशन ग्रामर में आप बहुत अच्छे हो, you know about each and everything whatever is coming in the exam, but अगर आपकी vocabulary अच्छी नहीं है, then you will stand nowhere, right? तो यहाँ पे देखो, means if nobody can say, जो word का meaning है उसके लिए आप कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं लगा सकते हो. उसको बस लर्न करना है, उसका वही मीनिंग है, दैट्स इट. ओके, तो ये टू द पॉइंट होता है. वोकैबुलरी को आपको फैमिलियराइज करना होगा बाय स्ट्रेंथन एंड बाय लर्निंग एवरी डे. ओके, दिस इज द वर्क यू कैन नॉट स्किप, इवन थिंक टू स्किप. ठीक है, नेक्स्ट देखो, टेक अ नोट ऑफ द पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आंसर चॉइसेस. यस, दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू. ठीक है, ये एक तरह से ट्रिक है या निमोनिक है जो आपको पहुंचाएगा आंसर की तरफ. इट इज पॉसिबल टू एसोसिएट अ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज विद ऑलमोस्ट एनी गिवन वर्ड. किसी भी वर्ड का देखो आप, उस पर आपको मिलेगा ही मिलेगा कि भाई ये नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज है. नेगेटिव या पॉजिटिव मतलब ये पॉजिटिव सेंस बता रहा है, ये नेगेटिव सेंस बता रहा है. ट्राई टू डिसर्न वेदर ईच वर्ड इन द फॉलोइंग लिस्ट हैज अ पॉजिटिव और नेगेटिव और न्यूट्रल चार्ज. इसको हम पॉजिटिव मानेंगे, मतलब ये पॉजिटिव वर्ड है. ठीक है, देन दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल, मतलब ये दोनों कैटेगरी में फॉल हो सकता है. अभी देखो, हमको सिनोनिम चुनना है, मलाइंड. ठीक है, एक वर्ड है मलाइंड. नाउ बेनिफिशिएंट, मैग्नेनिमस, देन डाउन ट्रोडन, डेस्टिट्यूट एंड एलिगेंट. ये सारे वर्ड नए हैं, हमें कुछ नहीं आता.
ठीक है, हमने एक भी वर्ड हमको समझ में नहीं आ रहा है, अगर हम इसमें समझ में आ रहा है लेकिन इसमें तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो कैसे करेंगे, चलो अभी आगे देखते हैं. इन द एग्जाम्पल वी आर ट्राइंग टू फाइंड द बेस्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड मलाइन, सो वी शुड बिगिन बाय असर्टेनिंग इट्स चार्जेस. यहाँ पे हम उसको चार्ज को असर्टेन करेंगे, यानी कि चार्जेस लगाएंगे हर शब्द पे. द प्रीफिक्स मल, अगर आप देखो ये जो मल है, प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, द वर्ड दैट इज कमिंग बिफोर द वर्ड, जो पहले आता है, मतलब रूट वर्ड अलग होता है, प्रीफिक्स अलग होता है, उसमें जोड़ के नया वर्ड बना दिया. तो यहाँ पे जो जिन वर्ड में भी मल आ रहा है उसका मतलब क्या होता है कि ये ज्यादातर नेगेटिव चार्ज दे रहा है. ठीक है, जहां पे भी आपको मल से रिलेटेड वर्ड मिलेगा, जहां पे भी जिस वर्ड में भी मल लगा होगा तो वहां पे वो नेगेटिव फीलिंग कराएगा. देयरफॉर द आंसर विल लाइकली हैव अ पॉजिटिव चार्ज. इसीलिए हम क्या बोलेंगे, आंसर क्या होना चाहिए, विल हैव अ पॉजिटिवली चार्ज. यहां पर लेट्स गो थ्रू द लिस्ट, सी हाउ ईच वर्ड इज चार्ज. एक एक करके देखते हैं. बेनिफिशिएंट इज पॉजिटिव. ठीक है, बेनिफिशिएंट से लग ही रहा है कि भाई बेनिफिशियल, इतना तो सब जानते हैं, बेनिफिट तो ये पॉजिटिव से रिलेटेड है. देन मैग्नानिमस, यहाँ पे मल नहीं है, मैग्नानिमस इज कॉल्ड वेरी वास्ट, ह्यूज, तो अगेन इट इज पॉजिटिव. डाउन ट्रोडन, अब डाउन का मतलब ही नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव चार्ज वर्ड है. डेस्टिट्यूट भी, जहां पे भी डेस्ट से रिलेटेड आता है वहां पर भी हमेशा नेगेटिव चार्ज आप देखते हो, नेगेटिव चार्ज लगेगा. एलिगेंट इज कॉल्ड, दिस विल फॉल इन न्यूट्रल कैटेगरी. ठीक है, एलिगेंट मीन्स जनरस और काइंड, और वी कैन से ना थोड़ा सा डोसाइल टाइप, तो एलिगेंट न्यूट्रल कैटेगरी में फॉल होगा. Now, after labeling each, we are left with two words that are positively charged. अब यहाँ पे दो वर्ड हैं जो positively charged हैं, beneficent and magnanimous. ठीक है, दो वर्ड कौन से हुए, beneficent and magnanimous. Even if you don't know the meaning of any answer choices, you have narrowed your choice down to two, are left with the 50% change of the answering correct. आपको नहीं पता है, ठीक है, बट हमने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज करके इतना कर लिया कि भाई चलो हम वर्ड के बारे में थोड़ा सा पहुंच गए कि भाई जो हमारा ये मलाइंड है, तो यहाँ पे मलाइंड से रिलेटेड कौन सा वर्ड हो सकता है. तो यहाँ पे हमने इतना सब कुछ करके पॉजिटिव और नेगेटिव के थ्रू हम 50% वर्ड्स को हमने वी कैन से ना जस्ट मूव आउट फ्रॉम द कैटेगरी. The same concept as we have seen ना in KBC, जिसमें कि भाई you are left with the 50-50, यानी कि दो चॉइस. तो इट्स वेरी इजी, मतलब थोड़ा तो इजी हो जाएगा आपके लिए कि अगर आप दो चॉइसेस से पढ़ो, 5 से भाई आप 2 पे आ गए, तो इट ऑब्वियसली यू हैव मेड दिस थिंग ईजियर फॉर यू. तो यहाँ पे क्या होगा, आंसरिंग करेक्टली, दिस इज अ क्विक टेक्निक दैट कैन बी वेरी बेनिफिशियल, दैट अटेम्प्टिंग टू आंसर द क्वेश्चन विद सेवरल वर्ड्स लाइक यू आर अनश्योर अबाउट. अभी बहुत सारे के बारे में आप अनश्योर हो, नहीं श्योर हो, तो ये टेक्निक बहुत अच्छी है. बट अगैन ये टेक्निक भी आपकी तभी काम करेगी व्हेन यू हैव अ लिटिल नॉलेज ऑफ द वोकैबुलरी. आपको पता ही नहीं है कि ये वर्ड किससे रिलेटेड है, प्रीफिक्स किस में आता है, तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग. ओके, सो आप जैसे ये ऐसा नहीं कि वोकैबुलरी, स्पेशली वोकैबुलरी आप पढ़ रहे हो, व्हेनेवर यू आर डूइंग ना एनी ऑफ द वर्क, पैसेज कर रहे हो, कोई ग्रामेटिकल पार्ट कर रहे हो, सेंटेंस फॉर्मेशन कर रहे हो, पैराग्राफ रीअरेंजमेंट कर रहे हो, जहां पे भी जो भी नया वर्ड दिखाई दे उसका ट्राई किया करो टू नो अबाउट द मीनिंग, सिनोनिम एंड एंटोनिम. ओके, ये याद किया करो. अभी यहाँ पे देखो हमको सिनोनिम पूछा है और पॉजिटिव चार्ज पे हमारा एंटोनिम हो जाएगा. मतलब ये क्या है, मल कैसा है हमारा, मल इज जस्ट समथिंग इज प्लेसिंग नेगेटिवली चार्ज. तो हमारा जो सिनोनिम होगा वो भी वही वर्ड होगा जो नेगेटिवली चार्ज होगा. अभी हमने देखा बेनिफिसेंट, मैग्नानिमस और एलिगेंट, ये इस कैटेगरी में फॉल नहीं होते हैं बिकॉज दीज आर विद द पॉजिटिव चार्ज. ये पॉजिटिव चार्ज है, ये न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल भी फॉल नहीं हुआ क्योंकि मैग्नानिमस क्लियरली हमारा पॉजिटिव चार्ज का है. दो हमारे पास वर्ड है, डाउन ट्रोडन एंड डेस्टिट्यूट. ठीक है, अब हम यहां तक तो पहुंच गए. नाउ ये मलाइंड का आपको एक तरह से थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि भाई मीनिंग क्या है. तो मलाइंड इज कॉल्ड व्हेन यू आर वेरी हार्श विथ समवन और समथिंग ना, दैट इज कॉल्ड मलाइंड. तो यहाँ पे हार्श अगर हम देखें, देखो अभी दो वर्ड आपके बचे हैं, तो अभी आपको नहीं पता कि कौन सा होगा इससे मीनिंग. तो डेस्टिट्यूट इज रिलेटेड विद डेस्टिनी. ठीक है, फॉर्चून से रिलेटेड लग रहा है. तो जिसकी डेस्टिनी नहीं होती है, यानी कि जो पुअर पीपल होते हैं, मीन्स लक नहीं होता है, डेस्टिनी नहीं होती है, दे आर नॉट हैविंग, तो ये उनसे रिलेटेड हो जाएगा, नेगेटिव है. ठीक है, यहाँ पे बचता है आपका डाउन ट्रोडन. ट्रोडन का मतलब होता है क्रश्ड. ठीक है, अगर आपने ये वाला वर्ड पढ़ा हो, रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उसमें भी ये वर्ड आया, डाउन ट्रोडन इज कॉल्ड क्रश्ड.
Crushed is called, again you are treating the people harshly by just assessing as if they are nothing before you, ऐसा समझ रहे हो आप. तो this word is having the same meaning and same sense. तो हम बोल सकते हैं what is the right answer? The right answer is downtrodden. तो ये आपका सिनोनिम हो जाएगा. और अगर आपसे एंटोनिम पूछे कि एंटोनिम कौन सा होगा, तो यहाँ पे 3 वर्ड है. एलिगेंट विल फॉल्स इन न्यूट्रल कैटेगरी. मैग्नानिमस का मतलब बहुत ह्यूज या बड़ा. एंड बेनिफिसेंट इज कॉल्ड जो सॉफ्ट स्पोकन, रिलेटेड टू गिविंग विश, ठीक है, दान देने वाला, आशीर्वाद, इससे रिलेटेड है. तो आपको एंटोनिम क्या हो जाएगा? बेनिफिसेंट. ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन वी हैव जस्ट रीच टू द राइट आंसर. आपको टाइम देना होगा, अदरवाइज 1-1 आपके क्वेश्चन से यू आर जस्ट गोइंग टू लेग बिहाइंड बाय गोइंग इन द लाइन ऑफ द सक्सेस. आपको ध्यान रखना पड़ेगा. ऑप्शन नंबर 3 देखो, एलिमिनेट आंसर चॉइसेस दैट हैव नो क्लियर एंटोनिम. जो बिल्कुल क्लियर आपको एंटोनिम नहीं बता रहे हैं उनको एलिमिनेट कर दो, उनको हटा दो, उनको अपनी चॉइस से बिल्कुल अलग कर दो. दिस टेक्निक ओनली वर्क्स ऑन some of the words. Consider the words rounded or striped. उनको देखना है राउंडेड और स्ट्राइप, जो आपको घुमा सकते हैं. उसमें लग रहा है ना आपको ये ट्रिकी है वर्ड, उन पे आपको ध्यान देना है. नीदर ऑफ दीज वर्ड्स हैव अ क्लियर एंटोनिम, क्योंकि जो भी राउंडेड या स्ट्राइप्ड वर्ड होंगे वो उनका क्लियर मीनिंग होगा ही नहीं. ठीक है, अब जैसे कि मलाइंड है, मलाइंड को आपको पता चल गया कि ठीक है भाई ये कैसा है, ये नेगेटिव वर्ड है. बट इवन देन अगर आपको उसका मीनिंग ध्यान भी नहीं आ रहा है तो भी आप कहीं ना कहीं फिट कर लोगे. बट जो हमारा पहला वर्ड था रेस्टिव, वो तो बिल्कुल ही अलग था. ट्रिकी, बहुत राउंड वर्ड था. तो while almost every word has a synonym, remember that not all the words have antonym and eliminate them first. ज्यादातर हर शब्द के सिनोनिम होते ही होते हैं. ठीक है, बट इतना जरूरी नहीं है कि हर वर्ड का एंटोनिम हो, क्योंकि एंटोनिम में कभी कभी क्या होता है कि आपको एंटोनिम बनाने के लिए प्रीफिक्स या सफिक्स की सहायता लेनी पड़ती है. मतलब कोई मेन वर्ड नहीं होता है. जैसे लाइक हुआ, तो लाइक के लिए कोई डायरेक्ट नहीं है हेट, क्योंकि लव के लिए हेट है. लाइक को आपको डिस लाइक लगाना पड़ेगा. ठीक है, तो हमने क्या किया, हेल्प ले ली प्रीफिक्स की, एंड देन वी हैव प्रोड्यूस द एंटोनिम. बट सिनोनिम एज फॉर एज हर वर्ड के होते हैं. तो आपको ये देखना है कि भाई एंटोनिम जो नहीं है उनको पहले एलिमिनेट करो, और जो राउंड और ट्रिकी वर्ड्स हैं या स्ट्राइप्ड वर्ड्स हैं उन पे आपको कंसीडर करना है और डिफरेंट ट्रिक्स देखनी है. एलिमिनेट आंसर चॉइसेस दैट आर क्लोज सिनोनिम. Spotting synonyms within the answer choices can be valuable because it allows you to narrow your viable answer choices. अभी क्या करना है, eliminate the answer that are close to synonym. आपसे एंटोनिम पूछा है ना, फिर भी आप पहले सिनोनिम देखो अगर देख सकते हो. क्यों? अगर आपको पता होगा ये सिनोनिम है तो आप उनको हटा दोगे ना, बिकॉज वी हैव टू गिव द आंसर फॉर एंटोनिम ऑफ दैट वर्ड. तो सिनोनिम जो भी है वो आपको क्या करेंगे, वो अलाउ करेंगे कि आपका जो पाथ है वो नैरो हो जाएगा. वायबल आंसर, जितने भी राइट आंसर है या पॉसिबल आंसर है उनके लिए आप कम ऑप्शन से बच जाओगे. इफ 2 ऑफ द आंसर्स हैव वेरी सिमिलर मीनिंग देन द करेक्ट आंसर इज एम्बिगुअस. अभी क्या होता है कि भाई अगर 2 वर्ड हैं बिल्कुल एक सा मीनिंग आ रहा है उन दोनों वर्ड का, तो अगेन आप क्या हो जाओगे, एम्बिगुअस. एम्बिगुअस अगेन इज कॉल्ड अनक्लियर. अनक्लियर और सस्पिशियस और कंफ्यूज अबाउट दैट कि इन दोनों में से कौन सा वर्ड होगा. सो इट इज पॉसिबल टू एलिमिनेट दीज चॉइसेस. तो ये आपके लिए पॉसिबल है. सिनोनिम फिर से बताया मैंने, वर्ड्स के सिनोनिम बहुत ज्यादा होते हैं, एंटोनिम बहुत डेफिनेट या स्पेसिफिक होते हैं. आप कोई भी वर्ड एंटोनिम नहीं लगा सकते हो, बट सिनोनिम हर वर्ड के ज्यादा होते हैं. तो आप सिनोनिम्स को सिनोनिम्स की हेल्प से एलिमिनेट कर सकते हो. सी इफ यू कैन एलिमिनेट 2 आंसर चॉइसेस फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स. हम एग्जाम्पल हैव बीन गिवन, तो हम बोल सकते हैं कि सिनोनिम ढूंढना इट्स रेदर मीन्स बहुत सारी चॉइसेस होते हैं, तो ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है. एंटोनिम इट्स रियली मीन्स क्विक टू फाइंड आउट. अभी देखो एक एग्जाम्पल देखो, इसका हमको एंटोनिम देखना है. इसका मतलब है फॉर्मेंट. ठीक है, हमारे पास एक वर्ड है फॉर्मेंट. द वर्ड्स मिटिगेट एंड मॉलिफाई, दे आर क्लोज सिनोनिम. ना यहाँ पे मिटिगेट, ये है हमारा मिटिगेट एंड मॉलिफाई. ये क्या है, ये क्लोज सिनोनिम है. कैसे हैं भाई, मिटिगेट अगर आपको एक वर्ड भी आता है, मिटिगेट अगर आपने सुना हो लेसन, कम करना, मिटिगेट का मतलब होता है कम करना. मॉलिफाई अगर ये सिनोनिम है, दोनों का मतलब होता है टू रिड्यूस और सॉफ्टन द पेन ऑफ इंटेंसिटी. कितना ज़्यादा पेन, कितना ज़्यादा स्पीड, उससे रिलेटेड होता है. तो मिटिगेट का मतलब होता है टू रिड्यूस, कम करना. नाउ टू मेक लेस सीवियर दिस लीव्स ओनली 3 रिमेनिंग वायबल आंसर चॉइसेस. अब आपने ये 2 हटा दिए, यहाँ पे हमको एंटोनिम ढूंढना है, तो ये 2 सिमिलर हो गए. अब 2 तो एंटोनिम नहीं हो सकते, क्योंकि एक वर्ड के 4 सिनोनिम हो सकते हैं, बट एक वर्ड का एंटोनिम तो वहाँ पे एक ही होगा ना, जो राइट होगा. तो यहाँ पे हमने 2 जो वर्ड थे वो सिमिलर मीनिंग थे, उसको हमने हटा दिया. नाउ वी हैव लेफ्ट विद ओनली 3 चॉइसेस. हमारी चॉइसेस कम हो गई ना,
नाउ अगेन आउट ऑफ दीज थ्री वी हैव टू अगेन चूज द वर्ड। हम दूसरी टिक लगाते हैं, चलो एक में हमने लगा ली, दो सिमिलर वर्ड देख लिए, वो आउट हो गए। अब हमारा बचता है इंजेंडर, चेक एंड सैटिएट। नाउ फॉर्मेंट इज रिलेटेड, आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए द मीनिंग ऑफ द फॉर्मेंट। फॉर्मेंट इज कॉल्ड व्हेन यू आर अराउजिंग समवन और समथिंग, प्रमोकिंग समथिंग बोलते हैं ना, उकसाना, तो फॉर्मेंट उससे रिलेटेड है। मतलब फॉर्मेंट हमारा थोड़ा सा नेगेटिव फीलिंग दे रहा है, ठीक है। तो हियर अभी आप देखो चेक, चेक इज हैविंग नो सेंस विद इट। फॉर्मेंट इज कॉल्ड व्हेन अराउजिंग या प्रोवोक करना, तो चेक यहाँ पे थोड़ा सा न्यूट्रल फॉल कर रहा है, तो ये नहीं होगा। सैटिएट इज गिविंग यू द फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन, जहाँ पे सेट से रिलेटेड वर्ड ज्यादातर पॉजिटिव उसमें फॉल होते हैं। देखो ऐसा नहीं कि जो भी मैंने आपको ट्रिक बताई है, यू कैन यूज ऑल द ट्रिक्स इन वन, क्योंकि आपको तो 1 या 2 फेस करने हैं, तो यू कैन यूज ऑल द ट्रिक्स इन वन। जो भी ट्रिक काम कर जाए आपका आंसर आना चाहिए बस, ठीक है। तो ये हमारी ट्रिक हो गई। सैटिएट अगेन इट इज गिविंग अ पॉजिटिव चार्ज, सेटिस्फैक्शन का फील आ रहा है। नाउ इन जेंडर, अभी ये जो वर्ड है ये आता है आपका राउंड या ट्रिकी या स्ट्राइप्ड कैटेगरी में। वाई? बिकॉज जेंडर आप हमेशा उसको क्लिक करोगे जेंडर से, इट इज रिलेटेड विद द जेंडर, रिलेटेड विद द फेमाइन और मस्कुलाइन, बट इट इज नॉट। अगेन इन जेंडर इज हैविंग द सेम मीनिंग, इज कॉल्ड दैट इज प्रोवोक, ठीक है। तो ये हमारा इसका एंटोनिम होगा इन जेंडर, जिसका मतलब होता है अराउज या प्रोवोक या किसी को उकसाना, टू रेज, हाई करना, इस तरह से। तो ये दोनों हमारे जो वर्ड हैं वो कैसी फीलिंग दे रहे हैं? नेगेटिव फीलिंग दे रहे हैं। दैट्स व्हाई द राइट आंसर विल बी इन जेंडर। बिकॉज अगर आप जेंडर देखो तो जेंडर में ज़्यादातर डिफरेंस आता है। इन जेंडर मतलब ये इंटेंसिटी को बढ़ा दिया, ये नेगेटिव वर्ड है। यूज योर नॉलेज ऑफ रोमन लैंग्वेजेस, फॉर एग्जाम्पल द स्पेनिश वर्ड्स मैलो मीन्स बैड, जहां पे भी मैलो या मल आ जाता है, अभी हमने पढ़ा था ना, उसका मतलब मल होता है। दिस इज अ कॉमन रूट फॉर मैनी नेगेटिवली चार्ज वर्ड्स। अभी बहुत सारे वर्ड्स हैं नेगेटिवली, जिनको नेगेटिवली थे, कौन कौन से हैं? मेलिग्नाइट, यहाँ पे मल आया है। देन मेलिगेंट, ये रहा मल, मल प्रॉस्परस ये आया। मेलेडिक्शन, देन मेलेवोलेंट, देन मलिशियस, देन मेल फंक्शन। इन एडिशन, ये सारे नेगेटिवली चार्ज वर्ड है, इनमें मल आ रहा है, ठीक है। देन इन एडिशन द स्पेनिश वर्ड ब्यूनो मीन्स गुड, जहां पे ब्यू से रिलेटेड वर्ड आएगा दैट इज गुड। इट इज ऑल्सो कॉमन रूट ऑफ द फॉर मेनी पॉजिटिवली चार्ज वर्ड। अभी देखो पॉजिटिव चार्ज ये जितने भी हैं, बेनेडिक्शन, बेनेफिशियल, बेनेफिसेंट, बेनेवोलेंट, बेनेफैक्टर, बेनाइन, ये जितने भी रिलेटेड वर्ड हैं ये सब पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं। वाई? बिकॉज दीज ऑल आर रिलेटेड विद द डिसेंट, जनरस मैनर, ओके, अ काइंड ऑफ विश, ठीक है, या कि ये जितने भी आपके वर्ड आ रहे हैं ये क्या दे रहे हैं? ये हमको एक तरह से पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं। तो ये प्रीफिक्स से भी पता चलता है कि भाई जो भी वर्ड बैन से स्टार्ट हो रहा है दैट मस्ट हैव अ पॉजिटिव चार्ज, मीन्स इट विल फॉल ईदर इन द सिनोनिम कैटेगरी ऑफ द सेम वर्ड, और ये एंटोनिम होगा जो नेगेटिव चार्ज का वर्ड होगा, ठीक है। तो ये जितने भी वर्ड हैं, कम से कम इन सारे वर्ड्स को अगर आपने ऐसे भी याद कर लिया कि भाई इस प्रीफिक्स से रिलेटेड सारे वर्ड्स नेगेटिव हैं, इस प्रीफिक्स या सफिक्स के रिलेटेड सारे वर्ड पॉजिटिव है, इट विल अगेन हेल्प यू, यही आपको बहुत सारी हेल्प कर देगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, बट बी केयरफुल, समटाइम क्वेश्चंस will attempt to trick the test taker by including the root verb in the words that belie their true meaning. Now belie is called that false untrue, okay, that's proof false, ठीक है। belie is called that proof false। बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं, रूट वर्ड होते हैं जो फॉल्स प्रूव होते हैं, मतलब वो नहीं लगते, क्योंकि इसीलिए इन वर्ड को क्या बोला जाता है? ट्रिकी वर्ड बोला जाता है। ज़्यादातर यही वर्ड्स डाले जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अभी देखो बेलिकोस, ये बैल से शुरू है, ठीक है, बैल से शुरू है, अगेन पॉजिटिव, बट इसका मतलब क्या होता है? एग्रेसिव, ठीक है, एग्रेसिव होता है इसका मतलब। तो ये कैसा हो गया? ये तो नेगेटिव हो गया। नाउ रेस्टिव आप पढ़ चुके हो, रेस्टलेस। नॉइसम, नॉइसम इज कॉल्ड, इट इज रिलेटेड टू बैड ऑर्डर, ठीक है, बैड ऑर्डर या जो डिसअग्रीएबल स्मेल है उससे रिलेटेड होता है। ना क्रेडिलस, क्रेडिलस आपको लग रहा है यहाँ पे कि जैसे कि क्रेडिलस इज रिलेटेड टू द क्रेडिट, ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है, यानी कि क्रेडिलस इज कॉल्ड दैट इज ट्रस्टी, तो ये पॉजिटिव हो गया हमारा, ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया। ये नेगेटिव से ही रिलेटेड है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। नाउ फ्लूसम इज कॉल्ड दैट इज रियली लुकिंग प्रिटी या ग्लोइंग, ठीक है, तो ये कैसा दे रहा है? जहाँ से हमारा फ्लो हो रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज। नाउ अडल्टरेट, आपने पढ़ा होगा, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो अडल्टरेशन इज कॉल्ड मिलावट, जिसको आप बोल सकते हो, तो ये है कंटामिनेटेड, ठीक है, कंटामिनेटेड मतलब इसमें कुछ मिलावट है, तो ये अगेन ये आपको अडल्ट, ये किसका वर्ड दे रहा है आपको? फीलिंग, नेगेटिव वर्ड। नाउ क्रेविन, क्रेविन इज कॉल्ड क्रेव, क्रेव इज जस्ट रिलेटेड टू अ काइंड ऑफ ना, जिस गंदी चीज़ों की जो आदत लग जाती है तो उसकी एक वो क्रेविंग होती है ना, तो क्रेविंग इज कॉल्ड, अगेन इट्स रिलेटेड विद द
नेगेटिव चार्ज, बट इसका मीनिंग अलग होता है, कावर्डली, ठीक है, तो ये भी हमारा नेगेटिव चार्ज है. नाउ प्रेसिपिटेट, यू नो द प्रेसिपिटेशन, द प्रोसेस ऑफ बीइंग सॉलिड, जो हमारा ऊपर जाता है पानी का, वेपर का, फिर देन प्रेसिपिटेशन वर्ड होता है, तो अगैन इट इज पॉजिटिव. एंड अगैन दिस इज प्रोसैइक. प्रोसैइक अगैन इट्स अ नेगेटिव वर्ड, प्रोसैइक, जिसका मतलब होता है जब हम जाते हैं तब फेकनेस की तरफ, मतलब एक ही चीज़ की तरफ हम जा रहे हैं, कुछ नया ट्राई नहीं कर रहे हैं. कैसा हो गया है, थोड़ा सा आप बोल सकते हो फेक हो गया है, या मोनोटोनस. मोनोटोनस मतलब एक ही जैसा, बोरिंग. तो ये प्रोसोइक भी एक नेगेटिव फीलिंग दे रहा है. अभी अगर आप यहाँ पे देखो तो जो नेगेटिव हैं, जो पॉजिटिव हैं, बट उनमें कुछ ट्रिक्स है. कुछ लग रहे हैं बेल, जैसे कि बेल स्टार्ट है, पॉजिटिव होता है बट ये नेगेटिव है. नाउ रेस्ट इज लुकिंग एज पॉजिटिव बट ये नेगेटिव है. नाउ नॉइसम, अगैन इट्स बैड ऑर्डर. सम, तो लग रहा है कि भाई सम का मतलब एनी ज्यादातर नेगेटिव में फॉल होता है, एनी. सम पॉजिटिव कैटेगरी में फॉल होता है बट ये यहाँ पे नेगेटिव है. क्रेडुलस इज कॉल्ड, लग रहा है कि नेगेटिव है बट ये पॉजिटिव है. फ्लूसम, फ्लूसम, तो फ्लू आपको लग रहा है कि नेगेटिव है बट इट इज अगेन पॉजिटिव. अडल्टरेशन, अडल्ट होते हैं तो फिर पॉजिटिविटी, मैच्योरनेस आती है, बट यहाँ पे इट इज शोइंग नेगेटिव. क्रेविन, कावर्डली, अगेन नेगेटिव. प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन बोलते हैं ना, प्रेसिपिटेशन मीन्स रिलेटेड, लग रहा है कि भाई इतना बड़ा वर्ड है, नेगेटिव, बट अगेन इट इज पॉजिटिव. एंड प्रोसैइक इज कॉल्ड दैट इज मोनोटोनस, ठीक है, एक सा, फेक, जिसमें ओरिजिनलिटी नहीं होती है, दैट इज वर्ड. सो अभी आपको यहाँ क्या करना है, अकॉर्डिंग टू मी जो जितने भी प्रिफिक्स से रिलेटेड वर्ड हैं, एक से जो वर्ड हैं, आप ये प्रिफिक्स को भी लर्न करो कि कौन सा प्रिफिक्स आपको पॉजिटिव या नेगेटिव सेंस दे रहा है. इट विल रियली हेल्प यू, आई एम टेलिंग यू, ठीक है. वो प्रिफिक अगर आपको दिख गया एग्जाम में तो ऑब्वियसली यू कैन ईजिली रीच टू द आंसर. अगर नहीं पहुंच सकते तो आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा आंसर को पहुंचना. ऐसे ही सफिक्स पढ़ो, जो सफिक्स कौन सा पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और कुछ जो ट्रिकी वर्ड्स हैं उनको अलग से नोट करके उनको बार बार रिवाइज करो एंड यू विल बी एबल टू डू दैट, ठीक है. अभी ये मैंने बताई आपको ट्रिक. नाउ इन नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ एंटोनिम एंड सिनोनिम. थोड़ा सा प्रैक्टिस करा दूंगी, अल्टीमेटली तो आपको ही करना है. ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो.